اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی رحمت کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا وہ پوری انسانیت میں سب سے باکمال اور بڑے ہی بے مثال تھے۔ دنیا میں ایک ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا جو تمام امتیوں میں بڑی فضیلت اور فوقیت رکھنے والی امت ہے، اور اس نبی کی خصوصیت اور اس نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی خصوصیت اور ہم پر کیے جانے والے انعامات و اکرامات کی خصوصیت دیگر امتوں کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ ہمیشہ انصاف کے پیکر تھے، عدل و انصاف کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے پیکر تھے۔ آپ کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز تھے۔ دنیا میں ایک عیسائی جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، وہ ایک کتاب لکھتا ہے دا 100 نام سے، دنیا کے عظیم 100 شخصیتوں کی سیرت کو وہ جمع کرتا ہے اور وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اس میں بڑے بڑی ہستیاں بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اس میں، اور یہ دنیا کا گوتم بدھ بھی ہے اس کے اندر، ہٹلر بھی ہے اس میں۔ دنیا کی عظیم شخصیتوں کو اس نے اپنے قلم بند کیا اپنی کتاب میں، اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود بھی نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد پورے 100 شخصیتوں کے سیرت میں اول نمبر پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت اور آپ کے حسن خلق جو مخلوق کے ساتھ آپ کیے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد مجبور ہو گیا، وہ انصاف کرنے والا تھا، اول نمبر پر اس نے نبی کو رکھا اور 5ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ دیا۔ عیسائیوں نے کہا تو منافق ہے، تجھے عیسیٰ علیہ السلام کو اول نمبر پر رکھنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتا ہے اگر آپ بھی نبی کی پوری سیرت اول تا آخر اگر پڑھو گے تو پوری دنیا میں نبی کے جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اتنے باکمال صفات اللہ نے ان کے اندر رکھے تھے، اور ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد انصاف کا تقاضا بنتا ہے کہ دنیا میں اول پوزیشن ان کو ہی دیا جائے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ انسانوں کے معاملے میں ہو، اڑوس پڑوسوں کے معاملے میں ہو، اپنوں کے لیے ہو، غیروں کے لیے ہو، یہاں تک کہ حیوانوں اور جانوروں کے معاملے میں بھی ہو، ان سے بڑا انسانوں میں انسانیت والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ اتنے اچھے انسان تھے وہ۔ یہ تو ایک معمولی مثال تھی، یہ دنیا کا مائیکل ہارٹ کیا معنی رکھتا ہے اللہ کے کلام کے سامنے، پھر بھی ایک دنیا والوں کی تمثیل کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، حرف عقیر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کے اخلاق کو کافی اونچے مرتبے پر فائز کر دیے۔ نبی کے اتنے پیارے اخلاق، اتنی پیاری سیرت، جو انسان نبی کو نہ پڑھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور ان کے اخلاق کو نہ اس نے سیرت نگاری کے شکل میں دیکھا ہے، وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی ظالم تھے، یہ نبی تلوار کے زور پر اسلام پھیلائے، یہ نبی کا دھرم اچھا نہیں ہے، یہ نبی نے جس اسلام کو لایا تھا یہ ٹیررزم سکھاتا ہے۔ جس نے نبی کو نہ مطالعہ کیا ہے نہ نبی کو جانا ہے وہی کہہ سکتا ہے۔ جن جن لوگوں نے، جن جن سائنسدانوں نے، جن جن ہندوؤں نے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، وہ اسلام سے متاثر ہوئے بنا ہرگز ہرگز نہیں رہے۔ اتنے پیارے اخلاق تھے نبی علیہ السلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے، ابھی نبی بننے سے پہلے سے بھی اللہ نے آپ کے اخلاق اور عزت کی حفاظت کی۔
40 साल की जिंदगी में नबी को नबूवत मिली, उस 40 साल से पहले बचपना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जवानी 40 साल से पहले की भी आप एक नुक्ते के बराबर भी नबी के अखलाक में ऐब नहीं बता सकते। इतने प्यारे अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंसाफ के बड़े पैकर। मक्के में काबतुल्लाह गिर गया, चंदा किया गया, हलाल पैसे जमा करके काबा खड़ा किया जाए, उतने पैसे जमा नहीं हुए जितना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा बनाया था। वो स्क्वायर फीट का काबा नहीं था, वो चौड़ाई में कम था, लंबाई में ज्यादा था। जैसे ये शेप होता है ऐसा था काबा पहले, जो चौड़ाई में कम और लंबाई में ज्यादा है। अब मक्के वाले बारिश के सैलाब से जब काबा गिर गया तो चंदा किए, कम पैसे हुए, तो जितने पैसे चंदा में जमा हुए थे हलाल पैसों से, उसमें उन्होंने काबा तैयार किया। आधी बकी थोड़ी जमीन बाजू बच गई काबे की, उस पर यू शेप की एक दीवार खड़ा करके उसको हतीम बनाया, ये भी काबे के अंदर की जगह। मसला यहां तक नहीं आया, इख्तलाफ यहां खड़ा हुआ कि वो जन्नत से नाजिल किया गया हजर अस्वद को अब कौन नस्ब करेगा। हर कबीला वाला चाहता है कि यह शर्फ मुझे मिले, मैं उसको उठाकर नस्ब करूं, ये हमारे खानदान के कबीले के सरदार को ये फौकियत मिले कि वो अपने हाथों से हजर अस्वद को नस्ब करे। अब झगड़ा शुरू हो गया, करीब था कि जंगों की शक्ल में तलवारें इन पर निकल पड़े। फिर किसी कहने वाले ने कहा कि बगैर लड़ाई झगड़े के रात में सो जाएंगे, सुबह में जो पहले काबे में हाजिरी देगा वही काबे में पत्थर रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में आ गए, मस्जिदुल हराम में। तो सारे लोग नबी को देखकर कहा कि इस बच्चे के अखलाक से हम मुतमईन हैं, इस बच्चे के अखलाक से हम बहुत मुतमईन हैं, ये जो फैसला करे अल्हम्दुलिल्लाह हमको राजी है, और अगर ये नसब भी करता है तो हम इसके फैसले पर राजी हैं। नबी अगर चाहते हजर अस्वद उठाकर अपने हाथों से खुद नसब करके अपना नाम ग्रेड जता ले सकते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक चादर बिछाई और उसमें हजर अस्वद रखकर 4 बड़े बड़े कबीले के सरदारों को, उस वक्त 4 कबीले थे, बुलाए, चारों किनारे पकड़कर उठाने बोले, खुद नबी अपने हाथों से रख दी, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। नबी का यह प्यारा फैसला लोगों के दिलों में घर कर गया। बचपन से नबी ऐसे जिंदगी गुजारे कि जब नबूवत का मौका आया, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, तो कोहे सफा पर खड़े होकर अपने कैरेक्टर के सर्टिफिकेट लेते हैं अल्लाह के नबी सबसे पहले। लोगों से कहते हैं, लोगों इतने साल में तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारा, तुमने मुझे कैसे पाया? कौन थे? वही लोग थे जिनके दरमियान से नबी का बचपना गुजरा था, वही गांव वाले, वही महल्ले वाले, वही बस्ती वाले, वही कैशो कबीले वाले। अरे मैं दूसरों के पास शरीफ ज्यादा बन सकता हूं, अपनों के पास पता चलती है कि मेरी खीर कितनी गली है, कितनी सड़ी है। मेरे अपने वाले तो जानते हैं ना मैं कितने पानी का आदमी हूं। अल्लाह के नबी अपनों से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आप मुझे सबसे पहले यह बताओ मैं कैसा इंसान हूं। लोग कहने लगे, अंत अमीन, अंत सादिक, अरे मोहम्मद तेरे जैसे अमानतदार को हमने आज तक नहीं देखा, तेरे जैसे सच्चे इंसान को हमने अब तक नहीं पाया। तो बड़ा ही अमीन है, अमानतदार है, वादे का पक्का है, जबान का सच्चा है। ये टाइटल कौन दे रहे हैं? दुश्मनाने मक्का, वो कुफार, वो कुरैश जिनके दरमियान से नबी का बचपना गुजर कर बड़े हुए 40 साल तक। अब उसके बाद नबी उनके सामने ऐलान करते हुए कहते हैं कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। जैसे मैं अब तक सच बोलते आया हूं, अभी भी मैं सच कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, तुम एक अल्लाह के इकरार करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। यहां नबी की सीरत का वो पहलू हमारे लिए माना रखता है कि लोग कह रहे हैं आप जैसा अमानतदार को हमने आज तक नहीं देखा, आप जैसे सादिक, आप जैसे सच्चे, आप जैसे वादे के पक्के इंसान को हमने अब तक नहीं पाया। यह सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तूफानें उठी, जैसे ही एक अल्लाह का ऐलान किए, कई दुश्मनान खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाविला करने लगे। गर्ज वो तमाम नबी की सीरत। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे क्या है गारे हिरा से जब आते हैं, अपनी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा के सामने कहते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर उड़ा दो, मैं अपने जान को खौफ में पाता हूँ। मैंने ऐसे फरिश्ते को देखा,
مجھ پر ایسی ایسی ذمہ داریاں وہ دے کر گیا ہے۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اہل کتاب کے عالم تھے۔ انہوں نے یہ کیفیت سنی اور کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اے نبی مت گھبرائیے، اللہ نے آپ کو نبوت بخشی ہے، نبی بنایا ہے، آپ کے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ رکھا ہے اللہ نے، اب آپ کو قوم ستائے گی، قوم مارے گی، یہاں تک کہ ہو سکے تو جلا وطن بھی کر دے گی، آپ مت گھبرائیے، میں اگر زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی جب کہہ رہے تھے کہ میں گھبرا گیا ہوں، مجھ پر چادر اڑا دو، خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ پیاری بیوی، کسی کے بھی کیریکٹر کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو کہ آپ کے ہسبینڈ کے کیسے کیریکٹر ہیں۔ بیوی کے پاس پوری شیروانی اتر جاتی، بیوی کے پاس پوری اصلیت معلوم رہتی کہ میرے ہسبینڈ کتنے پانی کے آدمی ہیں۔ بیوی اگر کہہ دے کہ یہ اچھے ہیں، سمجھ لو بہترین انسان ہے۔ بیوی اگر کہہ دے یہ برے ہیں، دنیا والوں کے لیے اچھے ہوں گے لیکن اصلی زندگی میں یہ کافی برے ہیں، تو سمجھ لو وہ یقیناً برا انسان ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، غریبوں کی امداد کرنے والے، محتاجوں مسکینوں کی مدد کرنے والے، ہر کسی کے مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ جو جملے ہیں نا، یہ 1000 میں سے ایک ہے۔ آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہوں گا، انسان کے کیریکٹر پر غور کر کے دیکھو یہ کیسے الفاظ تھے، یہ کتنے جامع سرٹیفکیٹ تھے اللہ کے نبی کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے۔ یہی نہیں، ابھی آگے آپ دیکھیے انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ، نجاشی بادشاہ، ابو سفیان سے پوچھتا ہے جو ابھی کافر ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، کیا بھائی تمہارے محمد صاحب کے جنگا ہوئے ہیں کیا؟ ہاں جنگا ہوئے ہیں۔ تم نے اس انسان کو کیسے پایا؟ تم نے اس انسان کو کیسے پایا؟ کبھی اس نے جھوٹ کہا ہے؟ ابو سفیان کافر ہونے کی حالت میں کہتا ہے کہ اس محمد کو آج تک ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس محمد کو آج تک ہم نے خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بڑا امین، وہ بڑا صادق، وہ بڑا سچا۔ کون دشمن گواہی دے رہا ہے ایک بادشاہ کے سامنے اللہ کے نبی کے کیریکٹر کی، اللہ کے نبی کے اخلاق کی۔ جب چند لوگ امہات المومنین کے پاس آ کر نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھے کہ نبی کے کیسے اخلاق ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی قرآن کا عکس ہے، جیسے قرآن میں ہے ویسی نبی کی زندگی میں ہے۔ جب بیویاں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ نبی کے اخلاق ایسے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کی کتنی نمایاں صفات نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی مدد کرنے، ہر کسی کی ہمدردی کرنے والے، انصاف کے تقاضے کو قائم رکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ذات کے لیے نبی کی ذات کو کئی بار ٹھیس پہنچائے گا۔ نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں کٹھن موقع کب آیا آپ کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ طائف کے میدان کا سفر میری زندگی کا کٹھن سفروں میں ایک سفر ہے، سب سے کٹھن مرحلہ میری زندگی کا طائف کا میدان ہے۔ جب طائف کے میدان میں ایک اللہ کے نعرہ بلند کر رہا تھا، لوگ مجھے پتھروں سے اتنا مارتے تھے میں غش کھا کر نیچے گر پڑتا تھا، اور لوگ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب مجھے ہوش آتا میں اٹھ کر کھڑتا، لوگ پھر مجھے مارتے تھے۔ میں کہتا کہ لوگوں ایک اللہ کا اعلان کرو، اللہ تمہیں کامیابی بخشے گا۔ لوگ مجھے اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، پھر مجھے خون سے لہلہان کر کے نیچے گرا دیتے تھے، میں بے ہوش ہو کر دوسری بار نیچے گر گیا۔ جب کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، میں اٹھ کر وہی جملہ کہا، لوگوں میں اپنی دعوتی کام پر تم سے روزی روٹی نہیں مانگتا، میں تمہاری آخرت کا سوال رکھ رہا ہوں۔ ایک اللہ کا اعلان کرو، دنیا آخرت میں اللہ کامیابی دے گا، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کو تیسری مرتبہ مارا، اتنا مارے کہ مار کر خون سے نونہان کر کے نیچے گرا دیے۔ تیسری بار گر گئے، چوتھی بار ہوش نہیں آیا۔ لوگ سمجھے مکے طائف والے کہ اب یہ مر گیا ہے، چلو چلیں، چل گئے۔ کافی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں ہوش آیا۔ نبی کے بدن میں اتنی قوت نہیں تھی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کو گھسیٹتے ایک انگور کی بیل غالباً تھی وہاں، اس کے نیچے جا کر بیٹھے۔
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کیا تو نے میری زندگی کے اختیار کو طائف والوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ اے اللہ، کیا یہ میری زندگی موت کے مالک ہیں؟ جب چاہے کھڑا کرتے ہیں، جب چاہے مارتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرا پیغمبر ہوں، اگر اب بھی تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرے جسم میں جان باقی رہنے تک تیرے دین کی کام میں کروں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ۔ ایک ایسا انسان جو دین کے لیے مار کھایا ہے، سر سے لے کر پیر تک خون سے نہلا دیا گیا ہے، جوتوں میں خون اتنا جم گیا ہے کہ جوتے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، خون سے نہلایا ہوا انسان اپنے مالک سے کہہ رہا ہے، اے میرے مالک، اب بھی تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میری زندگی میں جان باقی رہنے تک تیری دین کی خدمت میں کروں گا۔ اللہ نے جبل الملائکہ بھیجا، فرشتے ایسے زخمی حالت میں آ کر مدد کے لیے کہتے ہیں، آپ ہاں کہیے، ان دو وادیوں کے درمیان میں رکھ کر چکی میں جیسے پیستے ہیں آٹا، ایسے ان وادی میں رہنے والے ان ظالموں کو اللہ پیس دے گا۔ آپ ہاں کہیے بس۔ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا چاہتے تو فوراً کہتے، یہ ایسے خون سے نہلانے والے لوگوں کو فوراً آپ مار دو، ان کی ہڈی بوٹی ایک کر دو، ان کی چٹنی پیس کے رکھ دو۔ لیکن نبی نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں بدلے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ ایمان نہیں لائیں تو کیا ہوا، ان کی ذریت ضرور ایمان لائے گی، مجھے امید ہے۔ ہوا بھی ایسے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں جب اسلام کا بول بالا مکے کے اندر ہوا تو سب سے زیادہ مکے کے اطراف و اکناف سے اسلام قبول کر کے آنے والے قریش و قبیلوں میں طائف والے سب سے زیادہ تھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، طائف کے میدان سے چوٹ کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ مکے کے سردار نبی کا راستہ روکنے کے لیے مکے کے باہر کھڑے ہو گئے اور بولے، محمد تم یہاں نہیں آ سکتے، تم کو مکے میں انٹری نہیں ہے، چلو باہر نکلو تم۔ کیوں؟ ہمارے مکے کا جو مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کو تم خراب کر رہے ہو، ایک گاؤں شہر جا کر۔ اب مکے کے اطراف و اکناف جتنے بھی گاؤں شہر ہیں، ان تمام جگہوں پر ایک مرتبہ ایک گاؤں جاتے ہو، اللہ کے دین کا کام کرتے ہو، لوگ تم کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ہمارے مکے کو تجارت کے لیے آنا چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی کیوں جائیں مکہ، وہاں تو ایک پاگل آیا ہوا ہے، وہاں تو ایک دیوانہ آیا ہے، وہاں تو مجنون ہے، ہم کو جانے کی ضرورت نہیں، تم ہمارا مارکیٹ خراب کر رہے ہو، ہم تم کو یہاں انٹری نہیں دیں گے۔ کیسے نبی کو رو کے کھڑے ہیں ظالم مکے کے سرداران، ایک ایسے نبی جو پورا بدن زخمیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، ایسے نبی کو اندر آنے نہیں دے رہے، نبی گھڑگوں کے بل بیٹھ گئے، باہر کھڑنے طاقت نہیں ہے نبی کو، آپ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت ایک آدمی آتا ہے جو کافر ہے، اس کا نام مطعم بن عدی ہے، مطعم بن عدی، وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے ظالموں، اس انسان کو دیکھو جس نے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کا مال چوری نہیں کیا، اسے جھوٹ بولتا ہوا آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، کبھی کسی کو اس نے وعدہ خلافی نہیں کیا۔ ایسے سچے امین و صادق انسان کو اپنے زخم تو دھلنے دو، اپنے زخم پر مرہم پٹی تو کرنے دو، بعد میں تمہیں اپنے قانون لگا لینا۔ ارے ایسے انسان جو جینے مرنے کی حالت میں زخموں سے چور کھڑا ہے، اس سے تم اپنا راستہ روکے ہوئے اپنے قانون چتائے کھڑے ہو۔ مطعم بن عدی ہے جو محمد کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا، اس کی مرہم پٹی کرے گا، اپنے گھر کا کھانا کھلا کر اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ ہے کسی کے اندر مجال جو آ کر مطعم کو روکے؟ بٹھا لیے نبی علیہ السلام کو اپنے سواری پر سہارا دے کر اپنے گھر لے کر آئے، مرہم پٹی کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھلے، مرہم پٹی کر کے کھلا پلا کر اچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا موقع۔ دوسرا موقع، مکے والے اتنا ستائے نبی کو، اتنا ستائے، نبی اور صحابہ کے الگ الگ ظلم و ستم۔ اب ادھر کسی صحابی کو مار رہے ہیں، ادھر ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا ہے، ادھر زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، ادھر حضرت عمار آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ادھر بلال حبشی کو امیہ بن خلف ستا رہا ہے۔
पूरा मक्का गर्म है सहाबा को तड़पाने में, सताने में, मारने में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने में। जहां नबी जाते नबी को पीछे से पत्थर लेकर मारते और नबी के ये टाइटल मशहूर कर दिए गए थे, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनू है, ये जादूगर है, ये मशहूर कर दिए थे। नबी अपना मिशन नहीं छोड़े, दावती काम बराबर जारी रखते थे। लोगों को बाजार में भी कहते थे, लोगों को मकानों के गलियों में भी पुकार कर कहते थे, लोगों अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा, कुरान की आयत है, अल्लाह का ये पैगाम है, लोगों दीन कबूल कर लो, एक अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले कम नहीं हुए। एक मर्तबा अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पत्थर लगा और नबी का पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर गए। नबी को होश आया, अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल कर नबी अपने घर तक आए। किसी ने नबी के चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ऐ हमजा, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को वो अबू जहल ने बड़े संगीन तरीके से मारा। अमर बिन हिशाम उसका असली नाम है। हिशाम का बेटा अमर जाहिलों का बाप था, वो इसीलिए उसे अबू जहल कहा जाता था। सारे जाहिलों में बड़ा सरदार जाहिल था वो, अबू जहल इसीलिए कहा गया। अमर बिन हिशाम ने तुम्हारे भतीजे को बड़ा सख्त मारा, गालियां दिया पहले दावती काम करने पर, इतना मारा कि तुम्हारा भतीजा बेहोश होकर मार्केट में गिर गया। तुम्हारे भतीजे को लहूलुहान कर दिया वो अमर बिन हिशाम। अमीर हमजा जो नबी के सगे चचा थे, वही खून था, आए सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, नबी का चेहरा से खून टपक रहा, सीधा देखे, कुछ भी नहीं बोले, गए अबू जहल के घर में गए, उसका गिरेबान पकड़े, बाहर घसीट के लाए, पंचा मार मार के मुंह का मसड़ा फोड़ दिए अबू जहल का। कौन? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला। अभी इस्लाम कबूल नहीं किए, मार मार के मुंह का जबड़ा फोड़ दिए और वही हाथ लेकर सीधा नबी के दरबार में आए। बोले मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जा, ये देख मेरे हाथ पर जो खून लगा है ना, ये तेरे खून का बदला है। जिस शख्स ने तुझे मार कर लहूलुहान किया है ना, उसी को मार कर बदला लेके आया हूं मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे चाचा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बदला लिया जाए? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बदला लिया जाए? मैंने तुमसे कब कहा कि उसने मुझे मारा, मेरे चाचा जाओ उसे मार के आओ? मैंने कहा मेरे भतीजे ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे जख्म का बदला बड़ी सख्त मार मार के लिया, तुम तब भी खुश नहीं हो रहे? मेरे चाचा, क्या वाकई में आप मुझे खुश करना चाहते हो? क्या वाकई में आप मुझे खुश देखना चाहते हो? हाँ मेरे भतीजे, आखिरकार तू मेरे बेटे जैसा है, मेरा भतीजा है, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं। मेरे चाचा, मुझे खुशी इस बात में नहीं मिलती कि कोई मेरे मार का बदला ले। मेरे दिल की खुशियां तो उस वक्त खिल उठेंगी जब आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। यकीनन चाचा, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐसा बेटे, मेरे कलमा पढ़ने से तुझे इतनी खुशी मिलेगी? हाँ चाचा, आप कलमा पढ़िए, यही मेरे लिए काफी है। ये ले, मैं अभी का अभी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करता। अमीर हमजा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम कबूल कर ली। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा, मुस्कुराने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे चाचा, अब आपने मेरे दिल को खुश खुश कर दिया। मैं कभी किसी से बदला नहीं चाहता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी वो शख्सियत है, जब नबी को मारा जाता तो मार के बदले में दुआएं देते थे। अल्लाह के नबी क्या कहते थे? जब भी कोई मारता, ताइफ के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट के पैर को जख्म कर दिया गया, नबी ऊंट के ऊपर से नीचे गिर पड़े एक गड्ढे में, नबी के सर को चोट लगी, नबी के नीचे के 4 दांत टूट गए, नबी के सर की चोट लगकर खून बह उठा, नबी के जान टूट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा देखकर रो रही हैं, कह रही मेरे अब्बा, इन जालिमों से इतना जंग लड़ने की क्या जरूरत है आपको? आप अपनी जबान मुबारक से इतना बोल दो, अल्लाह इस जालिम कौम को जमीन चीर के अंदर धंसा दे, आसमान से बिजली उतार दे। आपका इतना बोलना काफी है, अल्लाह इन नालायकों को सफे हस्ती से मिटा के रख देगा। आप इतना कहीं को ये कर रहे, जंग कहीं को कर रहे हैं, इतना इनके साथ कहीं को लड़ रहे। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी मार खाकर भी
اپنی ذات کے لیے تکلیف برداشت کر کے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے بد دعا نہیں کیا. آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی وہ کس نبی پر پتھر برسا رہی ہے. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. مار کھا کر دعا دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. مجھے بولنے میں آسان لگ رہا ہوں گا، آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہوں گا. آپ کا اڑوس پڑوس آپ کو مار دے، بدلے میں آپ کو اتنی طاقت اتنا پاور دیا، آپ اس کے ہاتھ کا جواب لاتا مار کے دے سکتی ہیں. اس کے باوجود آپ جھگڑے کو ترک کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ابو داؤد کی وہ حدیث یاد کیجئے. نبی نے کہا اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں چند محلات بنا رکھا ہے. وسط کہتے ہیں درمیانی حصے میں. جنت کے درمیانی حصے میں چند محلات اللہ تعمیر کر رکھا ہے. ان محلوں میں سے ایک محل کی ضمانت دیتا ہے میرا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے اس آدمی کے لیے جو حق پر رہ کر جھگڑا نہیں کرتا کسی سے، حق پر رہ کر بھی اپنے مار کا بدلہ نہیں لیتا کسی سے، اپنی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتا، مار کا بدلہ مار سے نہیں دیتا، بلکہ اسے معاف کر کے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ اس جاہل کو ہدایت دے، علم دے، اسے نیک توفیق دے، دین کی سمجھ دے. یہ جہالت میں کیسے کیسے نادان کام کر رہا ہے. مار کھا کر بھی دعا دینا انبیاء کی صفت ہے بھائیوں. اللہ کے نبی کی یہ وہ کردار تھے، کبھی کسی کے لیے بدلہ نہیں لیا. اللہ کے نبی مار مار کر ظلم کی اتنی انتہا ہو گئی مکے والوں کی کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا 3 سالوں کے لیے. 3 سال عرب کی دھوپ، خطرناک دھوپ، عرب کی ٹھنڈ، خطرناک ٹھنڈ. وہ کڑاکے کی ٹھنڈ میں ایسی کڑاکے کی ٹھنڈ ہوتی ہے جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. عربستان کی دھوپ اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے جو ہم یہاں ہندوستان میں بیٹھ کے سوچ نہیں سکتے. اتنی سخت دھوپ، اتنی کڑاکے کی سردی. 1 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیے. نبی کو، نبی کے تمام ساتھیوں کو جو اسلام کے پیکر تھے، اسلام پر عمل پیرا تھے، سارے ساتھیوں کو، سارے صحابہ کو، ساری صحابیات کو. کیا ہوا یہ 3 سال میں؟ اللہ اکبر، بائیکاٹ کر دیے ان سے. ان کے خلاف 14 قوانین لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو راشن نہیں دے گا، کوئی ان کے ساتھ لیوا دیوی نہیں کرے گا، کوئی ان کو پانی تک نہیں دے گا، کوئی ان کو سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی ان کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا. 14 قوانین لکھ کر لگا دیے گئے چمڑے میں کعبۃ اللہ کے دروازے پر نبی اور نبی کے اصحاب کے خلاف. اس 3 سالہ زندگی کے عرصے میں نبی کی چہیتی بیوی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں، ان کا انتقال ہوتا ہے. چاچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. چاچا ابو طالب تو اسلام قبول نہیں کیے. آخری دم تک اللہ کے نبی کان میں کہتے تھے میرے چاچا آپ میرے کان میں کلمے کا اقرار کر لو، اس کلمے کو حجت بنا کر اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن چاچا کفر کی موت پر مر گئے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. اللہ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے نبی جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو ایک بڑے سہارا تھے نبی کے لیے. جب مکے والے آ کر بولے کیا جی تمہارا بھتیجا کیسا کیسا کام شروع کرا نا جی، ہمارے مکے کا مارکیٹ رک جا رہا، ہمارے مکے کا بزنس ٹھپ پڑ جا رہا، یہ تمہارے بھتیجے کے دعوتی سے کاموں سے تنگ آ کر مکے والے مکے میں آئے نہیں جیسا بھاگ کے چلے آ رہے. کیا کرنا تمہارے بھتیجے کو سمجھاتے نہیں آپ؟ ہاں کیسے ہولے ہولے کاما کرا، کیسے دیوانے کاما، پاگل ہو گیا تمہارا بھتیجا کیا؟ اب بولنے والے بولتی نا. نبی کے خلاف ایسے افواہیں لے کر، الزام لے کر آئے ابو طالب کے پاس. بولو تمہارے بھتیجے کو دولت ہونا، یہ مشن کئی کو لے کے کھڑا تمہارا بھتیجا 360 بتوں کے مقابلے میں ایک اللہ کا نعرہ، ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی توحید. کئی کو کہتے ہیں ایسی مشن. ہمارے بابا دادا پڑدادا لکڑ دادا سکڑ دادا پتھر کے مورتیوں کے، یہ درختوں کے جو مورتیاں 360
बुत बनाकर काबे में रखें, आग वाला एक खुदा, बारिश वाला एक खुदा, मुसीबत दूर करने वाला एक खुदा, औलाद देने वाला एक खुदा, बीमारी से शिफा देने वाला एक भगवान, ऐसे अलग 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 पावरों के जो मूर्तियां बना के रखे हम लोग, तो यही काफी है ना। पहले से चले कारा ये 360 बुतों के मुकाबले एक अल्लाह जो आंखों को भी नजर नहीं आता, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, हाँ ये कैसा। तो भी तुम्हारे भतीजे को बोलो जी रोक लो का ना, ये सब बंद कर डालो का ना। क्या होना कहते इसके बदले में? दौलत होना कहते, चंदा करके मक्के का सबसे बड़ा मालदार बना लेती हम लोग। क्या होना कहते इसके बदले में? हसीन औरत होना कहते। अरे पूरे अरबस्तान की सबसे हसीन औरत को लाकर दे देती, शादी कर लेके एंजॉय करो बोलो, आराम करो बोलो, जिंदगी गुजारो बोलो। क्या होना? क्या दिमाग फिर गया तुम्हारे भतीजे का? अरे किसी तबीब को बुला के इलाज कराएंगे जी तुम्हारे भतीजे का। सरदारी चाहता तुम्हारा भतीजा ये काम करके, अरे हम अपना सरदार बना लेती जी तुम्हारे भतीजे को। ऐसे 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 आफराम पेश करे, दौलत के, औरत के, ओहदे के, मनसब के सारे आफराम पेश कर डाले। हमारे अल्लाह के नबी को चाचा बुलाकर बोले, बेटे ये क्या कर रहा बेटे, बेटे ऐसा मत कर बेटे, देख मैं जब तक हूं तेरा साथ दूंगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, बेटे ये काम से तू बाज आ जा। हमारे नबी एक ही चक जवाब दिए। क्या जवाब दिए? मेरे चाचा ये लोग आसमान से सूरज तोड़ के मेरे दाएं हाथ में, चांद तोड़ के लाकर मेरे बाएं हाथ में रख दें, तब भी ये मोहम्मद अपने मिशन से एक कदम पीछे नहीं हटेगा, याद रखना। अल्लाह अकबर। ये जवाब, ये अदा, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या हिम्मत थी हमारे नबी की, क्या दावती काम था हमारे नबी का। बोले मेरे भतीजे तेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक तू वही कर जो करने के लिए आया, ये तेरा चाचा तेरा साथ देगा, जाओ जी तुम्हारे आफरान तुम्हारी जेब में रख लो जाओ। वही से चाचा का इंतकाल हुआ। अल्लाह क्या बोला, मेरे नबी तुम्हारा साथ देने की वजह से तुम्हारे चाचा को जहन्नम के सबसे हल्का अजाब देंगे हम, जूतियां पहनाएंगे, सर में भेजे में हांडी में जैसे सालना खतखत पकता ना, तुम्हारे चाचा का भेजा वैसा पकेगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा, तुम्हारा साथ देने की वजह से सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चाचा को देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सर का भेजा सालन की तरह पकेगा तो पूरी बॉडी की क्या हालत होगी, खाली तलवा को आग टच करने से ये हालत होगी। अब जो नौजवान हमारे टखने से नीचे कपड़ा लटका रही, अल्लाह के नबी की हदीस है, जो शख्स अपना इजार टखने से नीचे लटकेगा उसका वत्ता हिस्सा अल्लाह जहन्नम के अंदर डुबा देगा। उन्हें ऊपर से कहता भी तौहीद परस्त रहने दो, नीचे जो कपड़ा उसका टखने से नीचे लटका है अल्लाह की निगाह करम उस पर नहीं पड़ेगी और उतना हिस्सा अल्लाह जहन्नम में डुबा देगा। अरे तलवान को खाली आग के जूते लगे तो सर में का भेजा, हांडी में का सालन पके सर का पकड़ा, तुम्हारे टखने तक अल्लाह ताला जहन्नम की आग में तुम्हारे पैरों को डुबा डाला तो तुम्हारे बदन की क्या कैफियत होंगी। इसीलिए नौजवानों स्टाइला मारना छोड़ो, अपने कपड़े टखने से नीचे नक्को लटकाओ, तकब्बुरी की अलामत है ये, अल्लाह को नापसंद है ये। खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया। वो 3 साल कैसे गुजारे होंगे वो लोग, कैसा गुजारे होंगे, खाने नहीं पीने नहीं, राशन लाने गए तो कोई राशन देने तैयार नहीं। अरे सहाबा की जबान सुनो, नबी की सीरत पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। सहाबा कहते हैं हम में से किसी को एक चमड़े का टुकड़ा मिलता, 8-8 दिन तक पानी में भिगो कर अपने मुंह में रखकर चूस कर जिंदगी गुजारा करते थे। शैब अबी तालिब के घाटी के अय्याम में चमड़े का टुकड़ा मिला तो नेमत समझ कर लेते। क्या रहता चमड़े टुकड़े में, क्या खाने के लायक आता, पानी में भिगोना, सुबह दिन भर चूसना उसे। ऐसे हमने जिंदगी गुजारा, खाने के लिए खाना खाली हो गया हमारे पास। अरे दरख्तों के पत्ते चबाते थे हम लोग, हमारा बाथरूम नहीं होता था, हमको पैखाना नहीं आता था। जैसे बकरियां मेंढगियां डालती है ना, वैसे मेंढगियां लेट्रिन किया करते थे हम लोग, मेंढगियों की तरह लेट्रिन करते थे सहाबा। बड़े कठिन अय्याम थे वो 3 साल के। अब वो 3 साल के इन कठिन अय्याम में सहाबा कहते हैं माओं को ग़िज़ा मिलेगी तो माँ के सीने में मासूम बच्चों के लिए दूध आएगा, माँ को खाने के लिए ग़िज़ा नहीं है तो मासूम बच्चों के सीने में दूध कहां से आएगा। जब माओं को खाने के लिए खाना नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, हमारे बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रोया करते थे ना, वो खाना खाने के लायक थे, उनकी जिंदगी सिर्फ दूध पर डिपेंड थी।
और उनको माँ के सीने में दूध नहीं मिलता था क्योंकि माँ को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। छोटे छोटे मासूम बच्चे चीख मार कर जब रोते थे, पूरी शेब अबी तालिब की घाटी बच्चों की चीखने की आवाज से गूंज उठती थी। इधर बच्चों की चीखने की आवाजें, उधर मक्के वालों की हंसी। अब इनको गलने दो, अब इनको सड़ने दो, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इनकी मस्ती गलेगी, अब आएंगे ये 360 बुतों को मानने वाले, एक अल्लाह को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। कई सहाबा का इंतकाल हुआ, अपनी जान कुर्बान कर दिए, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़े सहाबा, ईमान से नहीं पलटे, पत्ते खाकर जिंदगी गुजार लिए, लेकिन इस्लाम से नहीं पलटे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उसके बाद वही शख्स आता है, उसका नाम मुतइम बिन अदी है। ये दूसरी बार नबी की लाइफ में एंट्री कर रहा है, ये दूसरी बार ये शख्स आता है और वो देखता है कि नबी को, नबी के साथियों को तड़पाने के लिए शेब अबी तालिब के घाटी में रख दिया गया है। तो ये फौरन काबतुल्ला जाता है, काबतुल्ला के दरवाजे से वो 14 खवानीन की लीश लाकर फाड़ कर जलाकर सत्यानाश करके कहता है, इंसानियत के खिलाफ है ये चीज कि किसी को तड़पाने के खातिर उसके अलावा उनकी औरतों को, उनके मासूम बच्चों को सताने तड़पाने के लिए धूप में, ठंड में, एक पहाड़ की बियाबान वादी में छोड़ दिया जाए। मुतइम बिन अदी उनको लाने जा रहा है, किसी माई के लाल में इतनी मजाल है आकर रोक ले। गए मुतइम बिन अदी, वो पर्जे फाड़ कर खवानीन जो नबी के खिलाफ बायकाट के लगा दिए गए थे, चिंदी चिदर कर दिए, नबी को, नबी के साथियों को मक्के में लेकर आए। अल्लाह अकबर। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, लेकिन मुतइम बिन अदी का इंतकाल हो गया कुफर की हालत में, वो इस्लाम कबूल नहीं करे। अच्छा, बदर की जंग हुई। बदर की जंग में तकरीबन 80 कैदियों को, 70 से 80 कैदियों को मक्के के काफिरों को कैद करके मदीना लाया गया, बेड़ियों में जकड़कर बिठाया गया है। अल्लाह के नबी उस वक्त मुतइम बिन अदी को याद करते, भले वो काफिर था, भले वो काफिर था। कुरान की एक आयत पढ़कर नबी याद करते, कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान से दिया जाना चाहिए, एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहिए। काश आज मेरा भाई मुतइम जिंदा होता और वो ये आकर कहता कि मेरे नबी, मैंने जिंदगी में 2 मरतबा आप पर एहसान किए थे। एक, ताइफ वालों से मार खाकर जब आप मक्के में आ रहे थे, सारे मक्के वाले आपको रोक के रखे थे, मैं आपको अपनी सवारी पर बिठाकर घर ले जाकर मरहम पट्टी करके आपके जख्मों को इलाज किया था। एक वो। दूसरा, शेब अबी तालिब के खवानीन को पुर्जे पुर्जे करके मक्के में लाने वाला ये मुतइम था। अल्लाह के नबी, मेरे उन 2 एहसानों के बदले आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन 80 कैदियों को छोड़ दीजिए। अगर आज मेरा भाई मुतइम जिंदा होता, कसम अल्लाह की, कसम मेरे अल्लाह की, मुतइम की जिंदगी के वो 2 एहसानात जो मुझ पर मुतइम ने किया था, उन 2 एहसानों के बदले इन सारे कैदियों को मुतइम के एक जुमले पर मैं आजाद कर देता, क्योंकि एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहिए। हमारे नबी ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, तड़पाया गया, बहुत कुछ मारा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर एक सहाबी हैं उसैद बिन हुज़ैर, और एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा में लोगों से कह रहे हैं, लोगों, अल्लाह के पैगाम को मैंने अमानतदारी से तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम अल्लाह के पास गवाही दोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे, आपने अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से पहुंचा दिया। अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे दीन को तेरे बंदों तक अमानतदारी से मैंने पहुंचा दिया। उसके बाद नबी कहते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जिंदगी में कभी इसे मत छोड़ना वरना गुमराह हो जाओगे, दुनिया नेस्तो नाबूद करके रख देगी तुम्हें। एक कुरान, दूसरी सही हदीस, ये 2 चीजों को मजबूती से थामना। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, जो यहां हाजिर हैं वो तुम्हारे गायब तक, दुनिया के कोने कोने तक इस दीन को पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। उसके बाद अल्लाह के नबी एक ऐसा जामे खुतबा देते हैं, उस खुतबे में 10 नसीहतें करते हैं जो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है।
सुनहरे हरूफ से। उसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। बुखारी मुस्लिम में बड़ा जामे खुतबा है ये। खैर, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि खुतबा हज्जतुल विदा मैं आपके सामने पेश करूं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा के सामने कहते हैं, लोगों, मैंने इतने साल आपके दरमियान जिंदगी गुजारा, जाने अनजाने में मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे पैर से, मेरे जिस्म से, मेरी जात से अगर किसी को कोई अजियत पहुंची हो, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अगर कोई बदला लेना चाहे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हाजिर है, वो आकर बदला ले ले। अल्लाह के नबी का यह ऐलान सुनकर एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अतीक उठे और वो बोले कि आपने मुझे एक बार मारा था, मैं मार के बदला लूंगा। उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, ये मुनाफिक लग रहा, आपको मारने की बात कर रहा। अल्लाह के नबी आप हाँ कहिए, तलवार लेकर इसकी गर्दन उड़ा। नहीं, उसे छोड़ो, उसे आने दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, कब मारे थे भाई? मुझे तो याद नहीं, आप बदला लेना चाह रहे ना, ये लो कोड़ा लो, मारो, बदला लो। नहीं नहीं अल्लाह के नबी, चादर उस वक्त नहीं थी मेरे बदन पे, आपके बदन पर चादर है, इंसाफ कीजिए, चादर निकालिए आप। अल्लाह अकबर, चादर निकाल दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मारने के लिए हाथ उठाए, हाथ कांपने लगा, नीचे गिर गया कोड़ा, नबी से चिमड़ गए। यहाँ गर्दन के नीचे नबी के पीठ में एक उभरा हुआ गोश्त का हिस्सा था जिस पर एक मस्सा था, उसे मोहर नबूवत कहते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो हालत ईमान में मोहर नबूवत को देख ले, अल्लाह की जहन्नम की आग उसे नहीं छू सकती, बशर्ते है वो ईमान पर जिंदा रहे, ईमान पर उसका खात्मा हो। वो सहाबी चिमट कर मोहर नबूवत चूमने लगे। बोले अल्लाह के नबी, बदर में आपने सफ आरा के बीच में सफ़ों को दुरुस्त करते वक्त अपनी छड़ी से मुझे यहाँ रखकर ढकेले थे, जो मुझे तकलीफ पहुंची थी, उसी को मैंने बहाना बनाया आपको मारने का। कभी आपने मुझे नहीं मारा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के नबी, कभी आपने मुझे नहीं मारा। आपकी मोहर नबूवत चूमना चाहता था, बस इस बहाने से मैंने किया। इस रिवायत में ये अल-मुअजमुल तिबरानी अल-जामी उस-सगीर की सही सनद की हदीस है। ये इस रिवायत से हमें इबरत क्या मिलता? कायनात के इतने बड़े पैगंबर एक आम आदमियों के सामने माफी मांग रहे हैं, मैंने कुछ आपको अजियत पहुंचाई हो, मुझे माफ कर दो बोल रहे हैं। आज हम क्यों नहीं माफी मांग सकते? हम क्यों नहीं माफी मांग सकते? क्या हम नबी से बड़ा दर्जा रखते हैं क्या? नाउज़ बिल्लाह। अरे नबी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं जी हमें, नबी के सहाबा के धूल के बराबर भी नहीं हमें, तो हम क्यों नहीं माफी मांग सकते? हम क्यों नहीं माफी मांग सकते? जानते हैं आप, आपकी जिंदगी में आपने कितने लोगों को सताया होगा, आप खुद याद करके मुहासबा करो। आपकी मौत आने से पहले अल्लाह के पास इसका बदला देना है आपको। आपकी मौत आने से पहले आप अपना मुहासबा करो, कितने लोगों को आपने सताया, कितने लोगों को रुलाया, कितने लोगों पर जुल्म किया, कितने लोगों के साथ गाली गलोच किया आपने, कितने लोगों की गीबत की आपने, कितने लोगों का माल बचपन में चोरी किया आपने। याद करो, कितने लोगों की अमानत में खियानत किया आपने, याद करो। क्या आप माफी नहीं मांग सकते अपनी मौत आने से पहले? क्यों नहीं माफी मांग सकते जी? मैं कैसा माफी मांगू मौलाना, मेरी इज्जत चली आती मौलाना। अरे दुनिया की इज्जत छोटी है जी आखिरत की इज्जत के सामने। आखिरत की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत जी, आखिरत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत। हमारे नबी जब मक्का फतह हुआ तो लोगों से नबी पूछते हैं, लोग ऐ मेरे साथियों, तुम मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? लोग कह रहे हैं हाजा यौमुल मलाहिम, हाजा यौमुल कत्ल, आज का तो दिन कत्ल का दिन है, आज का तो दिन खून रेजी का दिन, बदले का दिन है। जिन को हमने मारा था उनको आप खड़ा करके मूली गाजरों की तरह गर्दनें उड़ा देंगे। आपके इख्तियार में मक्का फतह हो गया, आपके इख्तियार में जिनको चाहे आप गर्दन उड़ा सकती। आज तो कत्ल का दिन, बदले का दिन। कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन नबी ने कुरैश मक्का से पूछा, जो सबसे ज्यादा नबी को सताए, तड़पाए, मक्का छोड़कर मदीना जाने पर मजबूर कर दिए, जिला वतन कर दिए, ऐसे जालिमों से नबी ने पूछा। अल्लाह के नबी उस वक्त भी पूछे थे जब नबूवत पेश कर रहे थे, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फतेह मक्का के दिन जब इख्तियार नबी के हाथ में अल्लाह ने दे दिया, चाहे तो खड़ा करके गर्दन एक एक की छांट सकते थे नबी। जब पूछ रहे हैं उन्हीं जालिमों से, सताने के बाद, मारने के बाद, अब इस वक्त मेरे बारे में तुम क्या गुमान रखते हो? तुमने हमें मारा, सताया, हमारे सहाबा को बेदुरे कत्ल किया, हमारे सहाबा के साथ जुल्म ज्यादती किया, अब हमारे इख्तियार में हो, ऐ कातिलो, ऐ जालिमो, तुम सो कहो मेरे बारे में अब तुम्हारा क्या गुमान है?
वो क्या कहने लगे, अंत करीम इब्नु करीम, आप रहम करने वाले बाप के बेटे, रहम करने वाले इंसान हैं, हम आपसे रहम की उम्मीद रख सकते। अल्लाह के नबी ने कहा इज़हबू व अंतुम तुलखा, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, तुम सबको मैंने माफ कर दिया, जाओ तुम सब माफ हो। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं किया जाएगा, कोई तुम पर बाजपुर से कोई तुम पर तलवार नहीं उठाएगा, कोई अपने बदले की भावना में तुमको आंख से आंख तक नहीं लड़ाएगा। माफ किया मैंने, जाओ। मैंने तुम्हें वैसे माफ किया जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, जाओ ऐ जालिमो, मैंने तुम्हें माफ किया। अल्लाह के नबी अब उनको मारने वाले, उनकी जिंदगी से खेलने वाले जालिमों को माफ कर सकते हैं, तो हम अपने चाचा से बात छोड़े हुए, अपनी सगी बहन से बात छोड़े, अपने सगे भाई से बात छोड़े, अपने वालिद से बात छोड़े, अपनी वालिदा से बात छोड़े, अरे क्या मुंह लेके जाओगे जी अल्लाह के दरबार में, क्या मुंह लेके जाओगे जी? क्या मक्के वाले जालिमों ने जितना नबी और सहाबा को तड़पाया सताया, क्या उससे ज्यादा तुम्हारे अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ सलूक किया? उससे भी बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ, जो तुम अपने दिल में, अपने सीने में अदावत, कीना, कपट रखकर अपने रिश्तेदारियों से रिश्तेदारी कट किए बैठे हो। नबी माफ कर सकते हैं, सहाबा माफ कर सकते, आप क्यों नहीं जी माफ कर सकते? गज़वे हुनैन में बहुत ज्यादा माले गनीमत आया, बहुत ज्यादा माले गनीमत आया, कई हजार बकरियां, कई हजार ऊंट, कई केजी सोना या चांदी, कई ओकिया चांदी माले गनीमत में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैदी भी बहुत आए। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, आज मैं अल्लाह की रजा की खातिर इन तमाम खैदियों को बगैर मुआवजे के माफ करता हूं, तुम सब आजाद हो जाओ। सारे खैदियों को माफ कर दिया अल्लाह के नबी, और ऐलान किया सब सरदारान अपने अपने खैदियों को माफ कर दे। हर कबीले वाले अल्लाह के नबी का हुक्म सुनकर सारे खैदियों को माफ कर दिए, लेकिन बनु सलमा, बनु खुरैजा अपने खैदियों को माफ नहीं करे। नबी को पता चला, नबी आए, नबी पूछे बनु सलमा, बनु खुरैजा से कि तुमने अपने खैदियों को क्यों आजाद नहीं किया, तुमने अपने खैदियों को क्यों नहीं माफ किया? नहीं, हम नहीं माफ करेंगे, हमको हर एक कैदी के बदले 6 ऊंट चाहिए हमको, तब माफ करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, हर एक कैदी के बदले 6 ऊंट मैं तुमको दूंगा, तुम माफ करो इनको। अल्लाह के नबी ने उन तमाम कैदियों के बदले, एक एक कैदी के बदले 6 ऊंट बनु सलमा, बनु खुरैजा को दिए, और बोले इन तमाम कैदियों को माफ कर दो। माफ करना नबी की सिफत जी, माफ करना अल्लाह की सिफत जी, माफ करने की सिफत अल्लाह को बहुत पसंद है जी। हम भी माफ करना, हम क्यों नहीं माफ करते? अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कीना कपट रखेंगे हम लोग? अरे नबी की जान लेने वाले जानी दुश्मनों को माफ करते थे नबी। नबी एक बार आराम कर रहे, एक आदमी आया, तलवार निकाल लिया, मैं यमनाउका मिन्ना या मोहम्मद, अरे मोहम्मद तुमको मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी अब बेदार हुए, एक जंग से लौट रहे हैं, एक सायादार दरख्तों के नीचे आराम कर रहे हैं, सहाबा को दूर 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 दरख्तों में जहां साया था आराम करने चले गए। अब नबी के पास आजू बाजू कोई भी नहीं, नबी तने तनहा है, नबी पुकारे तो भी कोई आने वाला नहीं। नबी को वो दुश्मन तलवार लेके पूछ रहा, मैं यमनाउका मिन्नी, कौन बचाएगा मुझसे, तुमको बोलो। अल्लाह बचाएगा मुझे, अल्लाह पर भरोसा नबी का। नबी क्या बोले? अल्लाह बचाएगा मुझे। नबी का इतना कहना था, उसके दिल में हैयत तारी हो गई, हैबत तारी हो गई, कांपने लगा वो, और मारे डर के उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गए। अब नबी उठाए, बोले मैं यमनाउका मिन्नी, मुझसे तुझे कौन बचाएगा, बोल। नहीं बचाए, कोई भी नहीं बचा सकते, आप चाहे तो मेरे को मार के गर्दन उड़ा दो, बोल। नबी क्या बोले? जा मैं तुझे माफ कर, जा मैंने तुझे माफ किया। ये अदा, वो हैरान हो गया वो आदमी, अरे अभी चंद लम्हे पहले मैं तुम्हारी जान लेने बैठा था, अभी तुम मेरे जैसे जानी दुश्मन को माफ कर रहे? मेरे अल्लाह ने मुझे सिर्फ माफ करना सिखाया है, मैं तुझे माफ करता। ये अदा उस आदमी के दिल में घर कर गई और फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया वो आदमी। आप जैसा रहीम, आप जैसा करीम, जादूगर, धोखेबाज नबी नहीं बन सकता, अल्लाह का सच्चा पैगंबर ही आप हो सकते हैं। मुझे आपका इस्लाम बताइए, मैं अभी इस्लाम में आता हूं। एक बद्दू मस्जिद के कोने में आके पेशाब करने लगा, सारे सहाबा मारने दौड़े, नबी बोले रुक जाओ, उसे मालूम नहीं, उन्हें कर रहा, उसे करने दो। जब कर दिया, नबी उसे बुलाकर बोले ये अल्लाह के घर है, वान्नल मसाजिदा, ये अल्लाह के घर है, इसमें अल्लाह की इबादत होती है, आइंदा से ऐसा मत कर मेरे भाई, ऐसा मत कर। उसने नबी की आंख में अपने लिए शफकत देखा, सहाबा की आंखों में अपने लिए गजब देखा।
सारे सहाबा इससा घूर रही, अब मिला तो कच्चा चबा लेती गनाई से, लेकिन नबी रहीम और शफीक अंदाज से ऐसे देख रही कि उसे मोहब्बत के अंदाज से, माफ करने के अंदाज से उसने कहा, अल्लाहुम्मा रहमा मिन्नी व मुहम्मदा वला तरहमा मिनकुमा अहदा। अल्लाह मुझ पर रहम कर या मोहम्मद पर रहम कर, हम दोनों के सिवा यहां पर किसी पर भी रहम मत कर। अल्लाह के नबी बोले, ज़य्यख्तक रहमतन या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तू अल्लाह की रहमत को तंग करना चाहता है? ऐसा मत बोल, ऐसा बोल अल्लाह सब पर रहम फरमा। उसके बाद नबी ने उसे माफ कर दिया। ये अदा उस इंसान को इतनी लुभाई, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ऐसे ही एक नहीं, दसियों नहीं, 50 मिसाल है जिन्होंने अपने नबी के अखलाक से मुतासिर होकर इमीडिएटली कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बेशुमार मिसालें, इतने प्यारे थे नबी के अखलाक, इतने बेहतरीन इंसान थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तो छोड़ो, जब तक जिंदा थे अल्लाह के नबी कभी अल्लाह से माल मत्ता नहीं मांगे। इंसाफ के पैकर मस्जिद नबवी बनाने का मौका आया, सारे सहाबा के जैसे कूली मजदूरी का काम कर रहे, मिट्टी उठाने का, ईंट ढोने का। अल्लाह के नबी ग़ज़वे खंदक खोदने का मौका आया, खंदक के लिए गड्ढा खोदने का मौका आया, तो अल्लाह के नबी सारे सहाबा के बराबर एक आम इंसान की तरह कूली मजदूरी का काम कर मिट्टी उठा रहे। सहाबा देखे, अल्लाह के नबी आप ऐसा मत कीजिए, मैं क्यों ना करूं। रात भर तहज्जुद में खड़ते, पेट में ग़िज़ा नहीं होती, पैरों में सूजन आ जाती नबी की। अम्मा आयशा कहीं को पढ़ती हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर डाले, इतने लंबे क़ियामा कहीं कर रही, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। कभी कभी नबी के पेट में ग़िज़ा ना होने की वजह से, तहज्जुद में लंबा क़ियाम करने की वजह से गश खाकर गिर जाते थे अल्लाह के नबी। एक बार अल्लाह जिब्राइल को भेजा, ऐ मेरे नबी आप हाँ कहिए, खैसरो किसरा के खजाने अल्लाह आपके कदमों में लाकर डाल देगा, ये मक्के की वादियां सोना बनाकर तुम्हारे कदमों में अल्लाह डाल देगा। आप इतनी गुर्बत की जिंदगी कहीं को गुजार रहे, खाने के लिए खाना भी नहीं आपके पास। अल्लाह के नबी ये ऑफर देखकर, जिब्राइल अमीन की जबान से अल्लाह का ये ऑफर देखकर रोते हुए सर सजदे में डाल दिए, बोले अल्लाह मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी ये जिंदगी मुझे काफी है। जिस दिन मुझे रोजी तू देगा तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, जिस दिन रोजी रोटी नहीं मिलेगी गिड़गिड़ा कर तुझसे रोजी रोटी मांगूंगा, अल्लाह भूख लगी है खाना दे। वो जिंदगी मुझे पसंद है, मुझे खैसरो किसरा के खजाने नहीं चाहिए अल्लाह, ये मक्के की वादियां सोना बना कर दे नहीं चाहिए अल्लाह। हमारे नबी की दुआ क्या होती थी, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्किना व अमतनी मिस्किना वहशुरुहु फी ज़ुमरतिल मसाकिन यौमुल क़ियामा, अल्लाह मिस्किनों में जिंदा किया है, मिस्किनों में मौत दे, क़यामत के दिन मिस्किनों में मेरा हशर फरमा। ये अल्लाह के नबी की दुआ, मिस्किन बना के रख, मिस्किन बना के उठा। सहाबा पूछती ऐसा कहीं को दुआ कर रही है अल्लाह के नबी, मिस्किन। हाँ, इसलिए कि मेरी उम्मत के मालदार क़यामत के दिन 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के मिस्किन एक दिन पहले जन्नत में जाएंगे, और वो एक दिन मालदारों के लिए, मेरी उम्मत के मालदारों के लिए 40 साल के बराबर का होगा। अब ये 40 साल उम्मत मोहम्मदिया के मालदार करेंगे क्या मैदान में शर्म। एक एक रुपया जो दुनिया में दौलत होना अल्लाह, कार होना अल्लाह, बंगला होना अल्लाह, सुन्ना होना अल्लाह, चांदी होना हमेशा मांगते थे ना, वो एक एक रुपया का हिसाब देने में 40 साल लग जाएंगे मैदान में शर्म इन लोगों को। कभी अल्लाह के नबी दौलत का सवाल नहीं करे। नबी की जान लेने आने वाला एक आदमी मक्के से मदीना हिजरत कर रहे, एक आदमी सुराका बिन मालिक बिन जोशम, एक ऐसा इंसान ऐलान सुन लिया मक्के में, जो मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा उसका सर लेकर आएगा 100 लाल ऊंट उसे इनाम में दिया जाएगा। यह सुनकर सुराका बिन मालिक बिन जोशम घोड़ा लिया, दौड़ाते हुए नबी और अबू बकर को फॉलो करते हुए, वो कदमों के निशान, वो मेंढकियों के निशान देखकर फॉलो करते हुए करीब चला गया। अबू बकर पलट कर, अल्लाह के नबी दुश्मन पीछे आ गया, बिल्कुल करीब है, अभी आएगा वो पकड़ लेंगा। अल्लाह के नबी बोले मत घबराओ जी, अल्लाह हमारे साथ है, कहीं डर रही, कहीं घबरा रही, अल्लाह हमारे साथ है। ऐ अल्लाह तू काफी है हमारे लिए इस दुश्मन से। अल्लाह के नबी इतना बोले, उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए, उसके घोड़े के दोनों पैर जमीन में धंस गए। अब क्या निकालने की कोशिश कर रहा, नहीं निकल रहे, समझ लिया इतना करीब आके धंसना था क्या। हाँ, जरूर नबी की क्या की कमाल है इसमें, क्या कि जादू कर डाला भाई आदमी, यहाँ जाके पढ़ना बोले तो
ए मोहम्मद साहब हम ना छोड़ डालो जी, कम से कम मक्के को तो वापस जाना, वरना तड़प तड़प के यहाँ भूखा प्यासा मर जाऊंगा मैं, मेरे को माफ करो, छोड़ डालो, मैं चले आता हूँ, वापस चले आता हूँ। अच्छी बात, या अल्लाह उस मुसाफिर को छोड़ दे, वो अपनी मंजिल जाना चाहता है। उसके पैरा निकल गए। अब नीयत में फुतूर, नीयत में खतरा तो झोली में फतरा। अरे इतना करीब आके भी 100 ऊँटा गवा ले रहा तू, चल चल फौरन दौड़, क्या कि इत्तेफाक से वहां जमीन ढिल्ली होगा इसीलिए पैरा धसे होगा, इतना नजदीक आ, चल और एक बार कैच कर ले, पकड़ ले, 100 ऊँटा मिलते रहे दीवाने तेरे को। ऐसा फिर नीयत में फुतूर आ गया, फिर घोड़े बैठा, फिर नजदीक आया नबी के, है अल्लाह के नबी हुआ इंसान फिर हमारा पीछा कर रहा, फिर नजदीक आ गया, या अल्लाह तू काफी है इसके मुकाबले में हमारे लिए। फिर उसके पैरान धस गए। अरे फिर जादू करा वही आदमी, इतना नजदीक आके सपड़ना बोले तो अब तो हरगिज पीछा नहीं करता तुम्हारे, अब मेरे को दुआ करो वहां तो भी जाने दो, ये सवारी निकला तो घर तक जाता मैं, अच्छी बात, या अल्लाह उसे माफ कर दे। फिर निकल गए पैरा। अब तीसरी मर्तबा जब वो आ रहा था तो जब उसके पैरान धस गए तो उसने कलमे का इकरार किया। उसे यकीन हो गया ये कोई जादूगर इंसान नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, हम कैसे इंसान को पीछा करने। वो ऐलान करता है कि अल्लाह के नबी, मैं अब आपकी नबूवत का इकरार करता हूं, चाहे आप मुझे माफ करो ना करो, मैं आपकी नबूवत का इकरार करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा उसके करीब आए, बोले ऐ सुराखा अल्लाह तुझे माफ करे, अल्लाह तुझ पर रहम करे। उसके घोड़े के पैर निकल गए। उसके बाद नबी कहते हैं तुझे माल चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, ये मेरी पेशन को याद रख, तुझे मौत अल्लाह उस वक्त तक नहीं देगा जब तक कैसर किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथ में नहीं पिनाएगा अल्लाह। ये बोलकर नबी मक्का चले गए। वो इंसान हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में जमाने में जब कैसर किसरा मुल्क शाम मुल्क ईरान जब फतह हुआ, कैसर किसरा के खजाने लाए गए मदीने में, तो उस वक्त सुराखा बिन मालिक बिन जोशम को लाकर तख्त पर बिठाया गया और सोने के कंगन उनके हाथ में पहनाए गए। ये पेशन गोई नबी की पूरी हुई उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में। बताना यह चाहता हूं नबी अपने जानी दुश्मनों को माफ करते थे जी, जो हमला करने के लिए नजदीक आते थे। हमें कहीं कुछ ही माफ नहीं करते, माफ करने की सिफत रखना चाहिए। अब ये जिंदगी का मामला हुआ, मरने के बाद का एक हदीस का वाकया बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं, मेरा वक्त भी खत्म हो गया। अल्लाह के नबी जिंदगी भर कभी अपने लिए माल मत्ता नहीं मांगे। हमेशा तहज्जुद की नमाजों में अल्लाह के नबी की एक दुआ हुआ करती थी, वो क्या? अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत का बेड़ा पार फरमा। यही दुआ अल्लाह के नबी की जिंदगी भर। अल्लाह ताला एक मर्तबा नबी का ये रोना गिड़गिड़ाना, ये अल्लाह उम्मत के लिए इतना तरसना, ये देखकर जिब्राइल को एक मर्तबा भेजा और कहा मेरे नबी खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए, जन्नत का 1/4 हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया से भर दूंगा मैं। 1/4 हिस्सा मतलब 25%, 100 में 25%, 25वां हिस्सा जन्नत के 4 हिस्से, उसमें का 1 कोना हिस्सा मुकम्मल उम्मत मोहम्मदिया। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत मेरी उम्मत के हवाले किया। सर सजदे में रखे, फिर दुआ करने लगे अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत के मामले में मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार फरमा। फिर अल्लाह ताला भेजा जिब्राइल को, ऐ मेरे नबी क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि हम 1/4 तो क्या 1/3 हिस्सा जन्नत का उम्मत मोहम्मदिया से भर देंगे। 1/3, 1 में का 3रा हिस्सा 33%, 100 में 33%, जन्नत के 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें 3रा हिस्सा मुकम्मल उम्मत मोहम्मदिया को दे दिया जाएगा, बाकी के 2 हिस्से 1,24,000 पैगंबरों को और उनकी उम्मत को दिया जाएगा। अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा किए, ऐ अल्लाह तेरा बेइंतहा शुक्र एहसान है। फिर उसके बाद अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं हमारे नबी, कब? जिंदगी में, तहज्जुदों में। हम लोग भी उठती हैं तहज्जुद में, कई के वास्ते, अपने लिए, अपने जोरू बच्चों के वास्ते, अपने माँ बाप के वास्ते, अपने ख्वाहिश कबीले के वास्ते, अपनी दुनिया की परेशानियां बयान, इसके वास्ते उठ। हमारे नबी किसकी फिक्र कर रहे हैं? जिंदगी भर अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, हमारी फिक्र कर रहे हैं हमारे नबी। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर और रहम फरमा, मुझे रुसवा मत फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे नबी क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, फिर जिब्राइल को अल्लाह भेजा, सुनो मेरा वादा है तुमसे, जन्नत का निस्फ हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया को दिया जाएगा, आधी जन्नत उम्मत मोहम्मदिया से भर दी जाएगी, आधी जन्नत 1,24,000 कमोबेश अंबिया और उनकी उम्मत को दिया जाएगा।
अल्लाह तेरा बेइंतहा शुक्र एहसान है अल्लाह, तू मेरी उम्मत पर कितना रहम किया अल्लाह, अल्लाह तेरा बेइंतहा शुक्र है अल्लाह। खैर, ये हुआ दुनिया की दुआ, ये हो गई दुनिया की दुआ। अब सुनिए आखिरत का अंजाम। अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे पहले जन्नत में क़यामत के दिन अल्लाह मेरी कब्र को खोलेगा। मैं नहीं समझता कि मेरे साथ मूसा को जगाया गया है जो अल्लाह के अर्श का एक सुतून थामे खड़े हैं, या मेरे साथ उनको जगाया गया, मुझसे पहले जगाया गया। खैर, अल्लाह मेरी खबर को खोलेगा। यह बात मैं फखर से नहीं कहता, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, यह बात मैं फखर से नहीं कहता। बार बार इस हदीस में अल्लाह के नबी ये जुमले अदा करते हैं। यह बात मैं फखर से नहीं कहता, यह बात मैं फखर से नहीं कहता। मेरी खबर को पहला खोला जाएगा, मुझे उठाया जाएगा, मुझे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। यह बात मैं फखर से नहीं कहता। मेरे हाथ में जन्नत की कुंजियां लाकर दी जाएंगी, मेरे हाथों से जन्नत को खोला जाएगा, जन्नत की चाबियां ओपन कर दी जाएंगी। जन्नत के 8 दरवाजे किस नबी के? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जन्नत को ओपन किया जा रहा है। नबी को कयामत के हशर के मैदान में सबसे पहले उठाया जा रहा है। नबी को जन्नत का लिबास सबसे पहले पहनाया जा रहा है। अरे जिस नबी को सबसे पहले जन्नत का लिबास पहनाया गया, खबर से उठाया गया, जन्नत की दरवाजे ओपनिंग किए गए, अब सुनिए फैसले हो गए बंदों के। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। जिस नबी के हाथों जन्नत की चाबियां ओपन की गई थी वो नबी अभी भी मैदान महशर में बाकी है। सारे इंसान, सारे जिन्नात जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। वो नबी रहमत अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज हुए गिड़गिड़ा रहा है। मैदान महशर में वाकिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला कहता है इरफा रासक या मोहम्मद, मेरे मोहम्मद सर उठाइए, फसल तो इश्फा तो शफी, आप सवाल कीजिए आपको आज दिया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। दुनिया में जब तक जिंदा थे उम्मत के लिए दुआएं करने वाले हमारे नबी क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, वहां फिक्र में सजदे में पड़े हैं। अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए तुमको, बोलो। उस वक्त जो जबान से हमारे नबी के निकलेगा, अल्लाह मेरी उम्मत का एक बड़ा तबका जहन्नम में है, उनके लिए मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरी उम्मत को तो जहन्नम से निकाल, उनको निकाल। अल्लाह के नबी की ये सिफारिश सुनकर अल्लाह कहेगा मेरी फरिश्तों जाओ जहन्नम में उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को निकाल लाओ जिनके सीने में 1 दीनार के बराबर ईमान बाकी है, निकाल लाओ। निकाल कर लाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फिर सजदे में गिरेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह पूछेगा मेरे नबी तुमको क्या चाहिए। हमारे नबी हदीस में एक जुमला बयान करते हैं कि जिस वक्त में अल्लाह के अर्श के साए में सजदा रेज होऊंगा, उस वक्त ऐसे तस्बीह के जुमले अदा करूंगा जो जुमले आज तक दुनिया में किसी ने अदा नहीं किए। वो मुझे भी नहीं मालूम कि वो जुमले कौन से होंगे। उसी वक्त अल्लाह मेरे दिल दिमाग में डालेगा जब मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होऊंगा, उसी वक्त वो डालेगा। वो सबसे जामे तस्बीह के कलिमात होंगे जो तस्बीह पढ़ते हुए मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होऊंगा। ऐ मोहम्मद अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, सर उठाइए मांगिए, आपको दिया जाएगा। इलाही मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम में है, अल्लाह उनको निकाल, अल्लाह उनके लिए सिफारिश कर रहा। अल्लाह दूसरी बार कहेगा मेरे फरिश्तों जहन्नम से उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को निकाल लाओ जिनके सीने में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है। तीसरी बार नबी सजदे में गिर रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। मेरे नबी सर उठाइए, पूछिए, दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए, कबूल किया जाएगा, क्या चाहिए आपको। अल्लाह मेरी उम्मत का और भी तबका जहन्नम में है, उनके लिए सिफारिश कर रहा हूं, अल्लाह उनको निकाल। ऐ मेरे फरिश्तों उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकालो जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी है। मिन हब्बति मिन खरदलिल ईमान, मिन हब्बति मिन खरदलिल ईमान, राई के दाने के बराबर जिसके सीने में ईमान बाकी है, निकाल लो उनको। हमारे नबी की 3 मर्तबा सिफारिशों के बाद पहले 1 दीनार वाले, फिर आधे दीनार वाले, फिर राई के दाने के बराबर ईमान वालों को उम्मत मोहम्मदिया को निकाला जाएगा। हमारे नबी को हमारी कितनी फिक्र है जी। हमारे नबी की सीरत की हमना फिक्र है, जिंदगी में नबी के नक्शे कदम पर चलने की हमना फिक्र है। अरे जिंदगी में दुआएं करते तो सिर्फ हमारे लिए, क़यामत के दिन दुआएं करेंगे, सिफारिश करेंगे तो भी हमारे लिए। हमें कितनी फिक्र कर रहे हैं जी हमारे नबी की। हमारे नबी की सीरत का कितना मुताला करे जी हमें, हमारे नबी के नक्शे कदम पर कितना चल रही जी हमें।
اللہ اکبر، ضرورت ہے اس بات کی نبی کا سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، نبی کے اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے۔ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو اللہ نبی کے اصحاب کی سیرت طیبہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔